Hello students, today we start our next chapter, that is the functions of management. Now see here, first about management. Management is the process of bringing together the available resources and utilizing them for achieving the predetermined objectives. अभी यहाँ पे क्या बोला है? Management is the process of bringing together the available resources, जो भी resources available है, and utilizing them, उन्हें utilize करना है for what? For achieving the predetermined objectives, otherwise you can say predetermined goals. Now see here, the available resources are 6 M's. What is it? The available resources are 6 M, that is men, money, machines, methods, materials and markets. I repeat once again, the available resources are, that is the 6 M's: men, money, machines, methods, materials and markets. Okay, while achieving any objective we need to go through various functions. अगर हमको कौन सा भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है या गोल अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू गो थ्रू वेरियस functions. Now see, management is what manager does, means the role of manager in the form of different functions. Now see definition. The functions of management are forecasting and planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. I repeat once again definition. The function of management are forecasting and planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. Okay, and always remember you have to write definition in double inverted commas. Now see here, there are 6 functions of management. There are 6 functions of management. Number 1, planning. Number 2, organizing. Number 3, staffing. Number 4, directing. Number 5, coordinating. And number 6, controlling. There are 6 functions of management. Okay, now go for first one, that is a planning. Now see here, planning is the basic function of management. अभी क्या बोला यहाँ पे? Planning is the basic function of management. Planning means deciding the future course of action. क्या बोला है? Planning means deciding the future course of action. मीन्स आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि प्लानिंग हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स अभी फ्यूचर में जो होना है या करना है हमें उसके बारे में हम सोचते हैं. नाउ सी हियर, टू डू एनी जॉब we have to first study the exact nature of the job, the factors necessary for executing the job, the method of doing the job, the time when the job is to be completed and many other consideration. अगर आपको कौन सा भी जॉब करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वो जॉब कौन सा है, कैसा करना पड़ेगा, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मीन्स वो जॉब के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए. नाउ सी हियर, प्लानिंग इज फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट. क्या बोला यहाँ पे? प्लानिंग इज फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट. मीन्स मैनेजमेंट में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? प्लानिंग. अगर आपको एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, आप स्टडी का ले सकते हो. अगर आपको स्टडी करनी, एग्ज़ाम आ चुकी है, ठीक है, उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हो कि कौन सा चैप्टर करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से आ सकते हैं, वट एवर जो भी होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा? दिस इज द प्लानिंग. और प्लानिंग हम किस हिसाब से करते हैं? फॉर द फ्यूचर पर्पज़. अभी यहाँ पे एक डेफिनेशन दिए. नाउ सी हियर, यहाँ पे 2 डेफिनेशन दिए, आप कौन सी भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ सी फर्स्ट वन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. क्या बोला है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, when to do it and who is to do it. I repeat once again, planning is deciding in advance. Planning क्या है? एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है. ओके, what to do, क्या करना है, how to do it, when to do it and who is to do it. मीन्स क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, वट एवर, दैट इज इन प्लानिंग. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. ओके, नाउ गो नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट हेडिंग यू कैन से importance otherwise need of planning. Importance otherwise you can say need of planning. Number 1, see here, helps to set clear objectives. I repeat, helps to set clear objectives. Now see here, planning is concerned with setting objectives, targets and formulating plans to achieve them. क्या बोला यहाँ पे? Planning is concerned with setting objectives.
आपको जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी गोल होगा वो सेट करने के लिए होता है, एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम, वो अचीव करने के लिए। सी इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उससे फ़ायदा क्या हो सकता है कि जो भी मैनेजर होगा उसको प्रेजेंट कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है वो पता हो सकती है, एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। उसको पता होने के बाद वो क्या करेगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन ये है, वट एवर प्लस में या माइनस में, वट जो भी पोजीशन होगी वो फ्यूचर को जो भी करना है, फ्यूचर एक्शन जो भी लेनी है वो हिसाब से वो कर सकता है। ओके, नाउ सेकंड प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, अदर इज यू कैन से डायरेक्शन, path of action or direction. Now see here, planning provides proper direction in which the activities need to be conducted. What is say? Planning provides proper direction. Planning क्या करती है? Proper direction provide करती है. For what? In which the activities need to be conducted. जो भी आप activity करने वाले हो at that way. This facilitates the manager to direct his subordinates. What is say? This facilitates the manager to direct his subordinates. जो भी subordinates हो गए उनको डायरेक्शन के लिए काम आ सकता है, and when required, जब भी ज़रूरी हो सकता है. It helps employees to know what organization has to do. What is say? It helps employees to know what organization has to do. अभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है ये एम्प्लॉय को पता हो सकता है. Now take now here third one. Planning improves performance. What is say? Planning improves performance. It helps to improve future performance of employees by establishing objectives and selecting a course of action. I repeat once again. It helps to improve future performance of employees. Okay, जो भी employees है उनका जो भी performance होगा करंट, अदरवाइज यू कैन से इन फ्यूचर, वो कैसा होना चाहिए, इम्प्रूव होगा इससे. सी एंड सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको तो पता है, ठीक है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका क्या होगा, बेनिफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा. प्लानिंग लीड्स टू इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज़. ओके, प्लानिंग लीड्स टू इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द employees. Due to proper planning, the employees can work according to timely guidelines. अगर प्लानिंग प्रॉपर की है तो जो भी वर्कर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, जो भी टाइम आपको दिया है एज पर देयर गाइडलाइंस वो हिसाब से काम करेंगे. नाउ सी नंबर 4, मिनिमाइजेज द रिस्क. नंबर 4, मिनिमाइजेज द रिस्क. प्लानिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज और रिड्यूस रिस्क. क्या बोला यहाँ पे, प्लानिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज, अगर रिस्क मिनिमाइज हो सकती है, अदरवाइज रिड्यूस हो सकती है विद हेल्प ऑफ प्लानिंग. मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. ये तो आपको पता है, अभी मॉडर्न जो भी बिजनेस है यहाँ पे फुल रिस्क है. ओके, यहाँ पे इसीलिए क्या बोला है, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. पोटेंशियल रिस्क आर फोरकास्टेड एंड नेसेसरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आर डिसाइडेड वेल इन एडवांस. पोटेंशियल रिस्क आर फोरकास्टेड. अभी जो भी इन फ्यूचर में रिस्क आ सकती है, हम गेस कर सकते हैं कि ये रिस्क आ सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो हिसाब से हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं. नाउ सी नंबर 5, इंटीग्रेटेड प्रोसेस. नंबर 5, इंटीग्रेटेड प्रोसेस. प्लानिंग इज डन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. प्लानिंग इज डन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे बोला है क्लियरली, प्लानिंग इज डन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. अभी ऐसा किया कि सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग होती है या सेल्स के लिए होती है, नहीं, दिस इज डन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड hence their plans needs to be integrated with each other in order to achieve the desired results. I repeat once again, all the departments are interconnected. जो भी डिपार्टमेंट्स है, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, ओके, वो क्या होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए. मीन्स व्हाट, सपोज अभी आपको सेल करना है, आपको कुछ टारगेट दिया है, तो परचेज डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए कि ये टारगेट कितना है, क्या है, वो हिसाब से वो भी परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्लानिंग करेगा. इसलिए आगे बोला यहाँ पे, एंड हेंस देयर प्लान्स नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू अचीव देयर डिजायर रिजल्ट. जो भी उनका रिजल्ट होगा, जो भी एम होगा, जो भी
गोल होगा वो इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. नाउ टेक नेक्स्ट वन, नंबर 6, helps in decision making. What is say? Helps in decision making. Now see here, there are various alternatives in front of the management. क्या बोला यहाँ पे? There are various alternatives in front of the management. For achieving goals, planning helps the management to select best alternative by considering all. क्या बोला यहाँ पे? For achieving goals, अगर आपको गोल अचीव करना है, प्लानिंग हेल्प द मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है. फॉर व्हाट? द टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. जो भी मीन्स प्लानिंग सपोज आप करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को एक अल्टरनेटिव मिलता है कि ये करने के बाद कैसा होगा, ये करने के बाद कैसा होगा. मीन्स जो भी आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ सी हियर, इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस. इससे क्या हो सकता है, जो भी मैनेजर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर सकते हैं, रैशनल डिसीजन मीन्स प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ द प्लानिंग. नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 7, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. क्या बोला यहाँ पे, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. नाउ सी हियर, प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज. Planning facilitates the coordination of activities. The plans of one department are coordinated with the plans of all other concerned departments. अभी पहले पॉइंट में भी आपको बोला था मैंने यही क्या कि परचेज डिपार्टमेंट का प्लान जो भी होगा वो सेल डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए. सेल डिपार्टमेंट का जो भी प्लान होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए. मीन्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. Okay, I repeat once again this sentence. The plans of one department are coordinated with the plans of all other concerned departments. This brings in unity among the various departments. अगर सबको पता है कि प्लान कौन सा है, कौन सा गोल है, whatever, तो उसमें क्या, उनमें क्या आ सकती है, यूनिटी आ सकती है. और आपको तो पता है यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ. See here, I repeat, this brings in unity among the various departments of the organization. Okay, now take our next point is last, motivates personal. Motivates personal. The plans are framed in consultation with the subordinates. What is say? The plans are framed in the consultation with the subordinates. अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स है, वर्कर है, जो भी एम्प्लॉय है, तो एक साथ मिलके आपको प्लान करना चाहिए. Now see, when there is active involvement of the subordinates in planning, they become highly committed to the achievement of the goals. अगर उनका इन्वॉल्वमेंट प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग में एक्टिव होगा तो क्या होगा, उनको भी लगेगा कि यार हमने अच्छा सा पार्टिसिपेट किया प्लानिंग करने में, तो हमें अच्छे से काम करना चाहिए. और अच्छे से काम करने के बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा. नाउ सी हियर, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ चैलेंज फॉर द सुपेरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स टू अचीव द गोल्स. क्या बोला यहाँ पे, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ चैलेंज फॉर द सुपेरियर्स as well as subordinates. For what? For achieving the goals. Thus, planning develops a motivated and dedicated workforce in the organization. क्या बोला है, planning develops a motivated and dedicated workforce in the organization. Hence, planning is the basic requirement of any organization for the survival, growth and success. यहाँ पे काफ़ी important line बोली है. Now see, planning is the basic requirement for any organization. Okay, for what? For survival of the business, growth of the business and success of the business. अगर ये नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन होगी क्या? No,